Hello everyone, so this is another video from the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Today we are going to discuss about microsporogenesis. Microsporogenesis. Look, I try to break this word. Genesis means formation, formation किसी चीज का बनना. Spore, here we are going to talk about the microspore, that is the male unit. मेल यूनिट. मैं हमेशा कहता हूँ माइक्रो वर्ड आता है मेल के लिए और मेगा बड़ा वर्ड आता है फीमेल के लिए. हमने एक अच्छा बड़ा डेजिग्नेशन दिया है फीमेल को. सो माइक्रो मीन्स मेल यूनिट. स्पोर का मतलब होता है ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर. सो जस्ट रिकॉल, this is the male reproductive part that we call stamen, what we call stamen or androecium. Stamen, group of stamens is called as androecium, the male reproductive unit, where this is the filament, the long filament, and this is the stalk, and this structure is anther. Now look, the two qualities of this anther generally which is found in the angiosperms plant. This anther is bilobed. This is bilobed in condition. Bilobed, that means there are two lobes, दो उभरे हुए इससे हैं इस चीज के. Bilobed. Along with that, it is diathecous as well. Diathecous. Di का मतलब होता है two, and theca means chamber. Di का मतलब two, theca means chamber. एक लोब के अंदर एक थीका और दूसरे लोब के अंदर दूसरा थीका. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डाइथीकस. देखिए, अगर इसको थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस में हम समझने की कोशिश करें तो जो बाइलोब्ड कंडीशन है वो आपको आंखों से दिख रही है और थीका इसके अंदर है. थीका का मतलब होता है चैम्बर, मतलब एक मकान के अंदर कमरे, एक मकान के अंदर बने हुए कमरे. यहाँ पर बाइलोब्ड कंडीशन है, टू लोब्स हैं और उसके अंदर क्या है, चैम्बर्स हैं. थोड़ा सा मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. क्या है इसके अंदर बेटा, क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है आपके microsporangia. You already have studied about them, right? So inside the anther there are microsporangia, and inside the microsporangium there will be formation of microspores. What will be the formation of their microspores? The formation of microspores will take place inside microsporangium. देखिए, अब इस चीज को हम आगे लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा प्रोसेस होता कैसे है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है. इनफैक्ट व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल. एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, एज वी आर स्टडिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, you just remember I told you that meiosis is an important event in the sexual reproduction, right? To secure or to restore the same chromosome number, and just because of this meiosis, sexual reproduction is found to be better than asexual, राइट. सो इतनी जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है उसके पीछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके पीछे होने वाला मियोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ हमें देखना है कि मियोसिस कहाँ पर होता है. थोड़ा सा आप रिकॉल करिए कि मियोसिस का प्रोसेस है क्या, मियोसिस कैसे होता है. यू जस्ट रिमेंबर, मियोसिस में दो स्टेप होते हैं, राइट? मियोसिस में दो स्टेप होते हैं. अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मियोसिस होता है दो स्टेप्स के अंदर. मियोसिस होता है दो स्टेप्स के अंदर, मियोसिस फर्स्ट and meiosis second, right? So meiosis first, this is one parent cell. In meiosis first there will be two cells formed, and after that there will be meiosis second, and there will be formation of four cells. You also remember the meiosis first is the actual reductional division. This is actual reductional division. That means this is the cell division where the chromosome number becomes half. Right? And this is also to remember the one parent cell is going to convert into four daughter cells, whether they are going to form microspores in case of angiosperms or
sperms in case of human beings, right? So you just remember this event because it is going to take place inside the microsporangium when there is formation of microspores, right? So you can write down this and note down this to understand the further processings. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिकॉलिंग करता हूं ये कैसे होता है. देखिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. दिस इज an anther. When we cut this from this side, we move in. अब इसके अंदर हम मूव इन करेंगे. अंदर क्या चीज होती है, तो उसका डायग्राम ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले. मैं अभी भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कैसा होता है और अंदर से इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है. दैट मीन्स एंथर के टीएस को अगर हम देखें, इसका मतलब अंदर से चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को हम देखना चाहें तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है. तो ये तो इसका है क्या, बिल्कुल रियल पिक्चर जो आपके बुक्स में आपको मिलेगा. लेकिन इसको देखने के बाद हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, मैं खुद आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनके क्या नाम हम देते हैं, कितने तरीके से नाम हम उनको दे सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हम बनाने वाले हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर मियोसिस का उसमें रोल रहेगा, आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द प्रोसेस. नाउ जस्ट रिकॉल दैट व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द anther from inside. Now we have reached to that point, and you know that these are the 4 microsporangia. These are 4 microsporangia. This is one microsporangium. बेटा कोई फर्क नहीं होता, इसमें IA लगा दीजिए, प्लूरल बन जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. 4 microsporangia are present in one bilobed diathecous anther. That means the condition is known as tetrasporangiate condition. ठीक है, 8 का मतलब to bear क्या, sporangia कितने, 4 टेट्रा का मतलब होता है 4 sporangia कंटेन करने वाली स्ट्रक्चर. ठीक है, so here we have 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, थोड़ा सा आप रिकॉल करें, यहाँ बहुत ज्यादा हम नहीं बनाएंगे, पिछले वीडियो में हमने इस चीज को देखा है. सो व्हाट आर these are the 4 wall layers. Here it is epidermis, then after this is what, endothecium, then after third one, these are the 3 middle layers, 3 to 4 middle layers you can call middle layers, and after that the last one is called as what, tapetum. I am drawing it like this, not exactly but just for indication. This is tapetum. Right, now you see this was the structure that we know. This is what, here are the cells which are placed almost compactly and without any space, almost densely arranged, and this is the group of cells that you call sporogenous tissue. What do you call that? Sporogenous tissue. Archisporial tissue. What you may call that? Archisporial tissue. You can call it archisporial tissue. So this is a sporogenous tissue. Genus which is going to generate what? Spore. कौन सा? Microspore. This time as we are going to study microsporogenesis. Dear students, this is the story of the male reproductive unit formation. So ध्यान रखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसको, मेल पार्ट को, स्टेमन को. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मेल पार्ट या ये जो स्टेमन है या स्टेमन के अंदर जो एंथर है वो माइक्रोस्पोर्स को फॉर्मेट कैसे करता है, कैसे बनाता है. ठीक है, इन सारी लेयर्स के बारे में आप ऑलरेडी नोन है, आपको पता है ये क्या करने वाले हैं. अब देखिए अंदर क्या होता है. ठीक है, सो दीज आर द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू. अब देखिए क्या होगा जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बिगिन होगा. इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं हम इसको, एक को, ये 4 हो गए.
this is microsporangium, this is microsporangium. Actually there is a flash of the light, hence I try to write down it. So microsporangium, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शुरू होगा तो ये वाला चेंबर थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, बड़ा हो जाएगा और सेल्स लूज हो जाएंगे। सेल्स क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैं इस चीज को बहुत एनलार्ज व्यू में आपको उधर से कहा, ठीक है? अब ध्यान रखिएगा कि मैंने जो यहाँ पर हो रहा है वही इन चारों में हो रहा है। In each of the microsporangium this is going to happen, right? So यहाँ से मूव करके हम अगले स्टेप पर मूव कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा खुल जाएगा, स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो मैं इसको बड़ा बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये बड़ा हो गया, राइट? Now we can call it pollen sac. Now we can call it pollen sac. Now there is a space, थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर क्रिएट हो जाता है सेल्स के लूज होने से, ठीक है? अब क्या होगा, इसकी कुछ सेल्स तो आने वाले समय में बनाएंगी क्या? माइक्रोस्पोर। क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर। ध्यान रखिएगा, कुछ सेल्स आने वाले समय में क्या बनाने वाली हैं? माइक्रोस्पोर बनाने वाली हैं। इनमें से इन टिश्यू के अंदर में जो सेल्स हैं, इनमें से ही कुछ सेल्स आने वाले समय में क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी। लेकिन कुछ सेल्स डिसॉल्व भी हो जाएंगी, वो अपने आप को डिसॉल्व कर लेंगी, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगी। किस लिए? न्यूट्रिशन देने के लिए। किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, ठीक है? ये बात आप समझ सकते हैं, जो जन्म देता है वो नरिश भी करता है, ठीक है? जितना संभव हो पाता है। ये बात हम कई जगह देखने को हमें मिलेगी कि जिसने जन्म दिया है वो नरिशमेंट भी देता है, ठीक है? सो हियर वी आर गोइंग टू सी दैट सम ऑफ द सेल्स विल रीजनरेट टू नरिश द other cells. Okay, so these are the cells, suppose I write these are the cells which are going to form the microspores. तो इसमें से किसी भी एक सेल को हम चुन लेते हैं। ये सारे ही सेल्स अपने आप में क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। In short you can call it MMC. You can call it MMC, microspore mother cell. What you can call them? Microspore mother cell. देखिए मैं आपको इससे कितने नाम बताने वाला हूँ। आप इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप इसको बोल सकते हैं पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। सेल जो माँ है किसकी? पोलन की, पोलन ग्रेन की, ठीक है ना? इसको भी नाम और भी दे सकते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट। क्या नाम दे सकते हैं आप इसको? माइक्रोस्पोरोसाइट। क्या नाम दे सकते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल, स्पोर बनाने वाली। कौन सा? माइक्रो, जो मेल स्पोर बनाएंगे, ठीक है? तो मैंने आपको तीन नाम बताए। क्या नाम बताए? माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोरोसाइट, ठीक है? लेकिन यहां पर एक नाम आप और इसको दे सकते हैं जो जनरल नाम रहेगा, लेकिन लोग पूछ लेते हैं क्योंकि ये सेल, ये वाली सेल अंदर जाएगी कौन से सेल डिवीजन में? मियोसिस। क्या करने जा रही है? मियोसिस। इज दिस गोइंग टू परफॉर्म मियोटिक सेल डिवीजन। इसलिए इस सेल को आप कह सकते हैं मियोसाइट। क्या कह सकते हैं? मियोसाइट। मियोसाइट site, the cell which is going to perform meiosis, which is going to divide by the meiotic cell division, जो meiosis में जाने वाली है, मियोसाइट। तो इस सेल के क्या चार नाम हो गए? जो माइक्रोस्पोर बनाने वाली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोरोसाइट एंड मियोसाइट। ओके, एक और चीज नोटिस करने की है बेटा, ये सबके सारे ये डिप्लॉयड हैं। क्या है? डिप्लॉयड है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ होने वाला है, तो इस 2n से n कंडीशन आएगी। 2n से क्या आएगी? n कंडीशन आएगी, ठीक है? तो इनमें से ये जो पोलन मदर सेल है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ये पोलन मदर सेल है, या मैं इसको MMC लिख देता हूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिस विल अंडरगो meiosis first and then meiosis second, okay, and then it will form microspore tetrad. microspore tetrad बनेगा। तो देखिए जनरली ये एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, और दो सेल से ये चार सेल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की है बेटा, देखिए आप, ये मैं जो बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड
माइक्रोस्पोर टेट्राड, वी कॉल इट माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है इसका मतलब क्या है? टेट्राड जिसके अंदर फोर जॉइंट है, एक साथ जुड़े हुए हैं। याद करिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चीज बताई थी कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड किससे जुड़ा हुआ होता है? कैलोज। किससे जुड़ा हुआ होता है? कैलोज से जुड़ा हुआ होता है, जो इसे कौन देता है? इसके सेल्स बनाते हैं अंदर से, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। आपको 3 दिख रहे हैं, ये 4 हैं, 3 आपको दिख रहे हैं, एक इसके पीछे है। अगर आप इसको हाथ में पकड़ के देखेंगे, वैसे तो आते नहीं है, पर माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो 3 आपके सामने दिखेंगे, एक इसके पीछे दिखेगा। तो क्या सिर्फ ऐसे ही होते हैं? नहीं, ये कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं ये? रिमेंबर, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी यूनिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। देखिए, एंजियोस्पर्म्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, मोनोकॉट्स भी होते हैं और डाइकॉट्स भी होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स भी होते हैं और डाइकॉट्स भी होते हैं। अब होता क्या है, मोनोकॉट्स के अंदर इस तरह का सिचुएशन नहीं होती है। मोनोकॉट्स के अंदर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। अब वो क्या डिफरेंट सिचुएशन है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको तो हम मिटा सकते हैं क्योंकि अब हमने इसको बना लिया होगा, आई एम श्योर। सो मोनोकॉट्स के अंदर क्या सिचुएशन होती है? मोनोकॉट्स के अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड सिचुएशन नहीं आती है। वहां पर इसके अंदर आती है माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड टेट्राहेड्रल कंडीशन। टेट्राहेड्रल, ये कई तरीके के होते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड तो है ही है, इसके साथ साथ ये टेट्राहेड्रल कंडीशन भी है। कैसी कंडीशन है? टेट्राहेड्रल। माइक्रोस्पोर टेट्राड तो मोनोकॉट में भी बनेगा, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा। उसमें कौन सा बनता है? आइसोबाइलेटरल। कौन सा बनेगा? आइसोबाइलेटरल, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, हम उसको भी करेक्ट कर रहे हैं। जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर बनते हैं कैसे? आइसोबाइलेटरल। मतलब वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस तरीके का टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। किसके अंदर? मोनोकॉट्स के अंदर। किसके अंदर? मोनोकॉट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। लेकिन किस सिचुएशन का? वो होता है आइसोबाइलेटरल। कैसा होता है? आइसोबाइलेटरल, जिसमें आप चारों ही माइक्रोस्पोर्स को एक साथ देख सकते हैं, सामने दिख जाते हैं। तो वहां बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, लेकिन कैसा? आइसोबाइलेटरल। और उधर डाइकॉट्स में बनता है जनरली टेट्राहेड्रल, जिसमें 3 आपके सामने होते हैं, एक उसके पीछे चला जाता है। अब ये होता कैसे? ये कैसे पॉसिबल होता है? तो देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है सेल डिवीजन, ठीक है। एक है सक्सेसिव और दूसरा है साइमल्टेनियस, ठीक है। ये साइटोकाइनेसिस का तरीका है, आपने क्लास 11 में इसको पढ़ा होगा। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस सेल अंडरगोस साइटोकाइनेसिस। अब 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है सक्सेसिव, इधर वाला लेफ्ट वाला क्या हो सकता है? सक्सेसिव। और वो है साइमल्टेनियस। सक्सेसिव में क्या होता है बेटा? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियाई में, देन सेल वॉल फॉर्म नहीं होती है, यही सेल वॉल फॉर्म हो जाती है, सेल वॉल फॉर्म हो जाती है, और यही 2 न्यूक्लियाई 2 सेल बनाते हैं, और फिर फर्दर ये 2 सेल्स 2 सेल्स और बनाते हैं। इसका मतलब पहले 2 सेल बने और 2 से 4 सेल बने। तो हमारे पास कैसी कंडीशन आती है? आइसोबाइलेटरल। कैसी कंडीशन आती है? आइसोबाइलेटरल। और डाइकॉट्स में क्या होता है? डाइकॉट्स में एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है, सेल वॉल नहीं बनती, और यही 2 न्यूक्लियस फिर 4 में डिवाइड होते हैं। मतलब साइमल्टेनियस डिवीजन में क्या हुआ? एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ, और फिर यही 2 4 में डिवाइड हुए, इसके बाद चारों में सेल वॉल बनती है। इसी वजह से यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और इसके अंदर जो बनता है वो आइसोबाइलेटरल होता है। तो क्या इसके और भी टाइप्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स नजर आएंगे, ठीक है। आइसोबाइलेटरल अभी मैंने आपको बताया, जिसमें चारों एक साथ दिख जाते हैं। टेट्राहेड्रल, जिसमें 3 आपके सामने होते हैं, एक आपको दिखता नहीं है। इसके अलावा ये डेक्यूसेट भी हो सकता है, शेप आपको नजर आ ही रहा है, डेक्यूसेट भी हो सकता है, ये लीनियर भी हो सकता है, ये टी शेप भी हो सकता है। डिपेंड करता है एंजियोस्पर्म की स्पीशीज क्या है, वो मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। मोनोकॉट्स के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो मियोसिस होता है,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में मोनोकॉट्स के अंदर जो मियोसिस होता है, उस मियोसिस में साइटोकाइनेसिस होता है। कौन सा? सक्सेसिव, जिसमें पहले 2 सेल्स फिर 2 से 4 सेल्स बनते हैं और हमको आइसोबाइलेटरल माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलता है। वेयरएज इन द डाइकॉट्स सबसे पहले जो मियोसिस है उसमें साइटोकाइनेसिस के दौरान माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में डाइकॉट्स के अंदर मियोसिस में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो वो होता है साइमल्टेनियस टाइप। किस तरीके का? साइमल्टेनियस टाइप, जिसमें सबसे पहले एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, फिर 2 4 में डिवाइड होंगे और फिर सेल वॉल बनती है और आपको मिलता है कौन सा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। लेकिन कैसा? टेट्राहेड्रल। ठीक है। सो ये सारी पिक्चर्स जो है आपको ये बताती हैं कि कितने तरीके के टेट्राड हो सकते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड ही सब में बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इस एंथर में से या माइक्रोस्पोरेंजियम में से ये निकलेंगे बाहर तो ये सब अलग हो जाएंगे। जनरली ऐसा होता है कि ये सब अलग हो जाएंगे, मतलब ये चारों टूट जाएंगे और चारों ही माइक्रोस्पोर्स जब यहाँ से निकलेंगे, सपोज मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो चारों अलग अलग जाएंगे। राइट, चारों अलग अलग जाएंगे एंड ईच वन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर. What we call them microspore, and that will finally turn into a mature structure called pollen grain. What we call that? Pollen grain. ठीक है। यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। इसी के अंदर यहाँ पर जो टेपिटल सेल्स हैं, सपोज मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर देता हूँ। टेपिटल सेल्स जो होते हैं, टेपिटल सेल्स वो बनाते हैं, आपको याद होगा, उबिश बॉडीज। क्या बनाते हैं? उबिश बॉडीज। और ये उबिश बॉडीज क्या रिलीज करते हैं? स्पोरोपोलेनिन। क्या रिलीज करते हैं? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, पढ़ चुके हैं आप पहले। स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन इन हर माइक्रोस्पोर, इस माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या बनाएगा? एक लेयर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्साइन। सपोज दिस इज, मैं इसका फीचर दिखा देता हूं आपको। सपोज दिस इज माइक्रोस्पोर एंड टर्न इनटू पोलन ग्रेन एंड दिस विल हैव द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड एक्साइन। व्हाट वी कॉल इट? एक्साइन। तो इस टेपिटल सेल के अंदर जो उबिश बॉडीज हैं, ये उबिश बॉडीज बनाएंगे स्पोरोपोलेनिन और स्पोरोपोलेनिन इस माइक्रोस्पोर के ऊपर बनाएगा कौन से लेयर? एक्साइन। बेटा ध्यान रखिएगा, जनरली ऐसा होता है कि 4 माइक्रोस्पोर टूट जाते हैं और अलग अलग निकल के जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो कंपाउंड पोलन ग्रेन होते हैं, जो 4 के 4 निकल के जाते हैं। ऑल 4 कम आउट टुगेदर, दे डू नॉट गेट सेपरेटेड, जिनको बोलते हैं क्या? कंपाउंड पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? कंपाउंड पोलन ग्रेन। ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ऑर्किड। यू ऑल नो अबाउट द ऑर्किड। ऑर्किड्स आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? दे आर एपिफाइट्स। ऑर्किड एक ऐसा प्लांट है एंजियोस्पर्म्स का जिसके अंदर दुनिया भर के एक्सेप्शनल फिनोमेना है, एक्सेप्शनल फीचर्स हैं। जब कभी समय मिलेगा तो हम बात करेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो ऑर्किड होता है उसके अंदर एक विशेष चीज हमको देखने को मिलती है। क्या? उसके बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक क्लस्टर में लगे रहते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलिनियम। व्हाट वी कॉल देम? पोलिनियम। वी कॉल देम पोलिनियम। We call them polonium. What do we call them? Polonium. Okay, I'm showing you the picture of the polonium. So this is the structure of polonium in the orchids, right? Very unique phenomena. So dear students, in this chapter, what we studied? क्या क्या हमने पढ़ा? हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर देखा। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कहाँ? स्पोरोजिनस टिश्यू में उसको बनाया। जिस सेल ने उसको सबसे पहले बनाया वो कौन सी सेल थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने आप में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इससे मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, and then later on it turns into microspore tetrad where each cell is haploid in nature. यही हम चाहते थे। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, एक क्वेश्चन कोई पूछ ले, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो जवाब आएगा 4, 4. 1 microspore mother cell or pollen mother cell or microsporocyte turns into 4 haploid microspores, into 4 haploid microspores. Okay, so this was for today and you keep studying. अपने हाथों से भी ड्रॉ करें डायग्राम को। और मैं एक पिक्चर लास्ट में आपको फिर से वही दिखा रहा हूँ जो हमने देखी थी पहले, कि ये टोटली पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, आप इसको देखें और आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और ड्रॉ करिए, बड़ा करिए, खुश रहें, पढ़ते रहें।